أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا وعدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم نون بشد ہے تو یہاں ہم گننا کریں گے، ناک میں آواز جائے گی. نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ گننا ہی ہوتا ہے. مشدد حروف کے آگے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے حروف فعل کی ہے کہ نہیں، کیونکہ مشدد حروف پہ اپنی ہی ایک حرکت ہوتی ہے. اب یہاں پہ آگے حروف فعل کی ہاتھ تھا، میں نے پھر بھی نون پہ گننا کیا کیونکہ مشدد حروف پہ اپنی ایک حرکت ہے. احرصن ناسی، رو کو موٹا پڑھیں گے، رو پہ زبر ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حرف مستعلیہ ہے، ہیوی لیٹر ہے. نون پہ شد ہے تو غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، سین پہ سٹ کی آواز آئے گی. علا حیا، لام پہ کھڑی زبر ہے، ایک الف تک لمبا ہوگا، یا پہ بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف تک لمبا ہوگا. یہاں پہ دیکھیے تین نقطے ساتھ ہیں. یہ تین نقطے جو ہیں ان کو معان کا کہا جاتا ہے. یہ جہاں بھی آتے ہیں یہ ایک ساتھ ہی آتے ہیں. اس کا رول یہ ہے کہ ایک جگہ آپ نے وقف کرنا ہے اور ایک جگہ وقف کے بغیر پڑھنا ہے. اگر آپ یہاں پہ حیا پہ وقف نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ پڑھیں گے حیات یوں. یہاں پہ آپ ادغام کریں گے، مطلب ملائیں گے، اور آپ کو یہاں پہ رکنا پڑے گا. اشکرو کا وقت اشکرو ہی، اشرکو کا وقت اشرکو ہی ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں، حیا پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ اشرکو پہ آپ سانس چھوڑے بغیر پڑھیں گے، کیونکہ معانقہ کا یہی رول ہے کہ ایک جگہ آپ نے سانس چھوڑنا ہے، ایک جگہ نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ زال سافٹ لیٹر ہے، زی کو لمبا کریں گے، جزم والی یا پر زیر ہے، ایک الف تک لمبا ہوگا. اشرکو، رو کو موٹا پڑھیں گے، رو پہ زبر ہے، رو جو ہے یہ موٹا حرف نہیں ہے، اس پہ جو حرکات ہوتی ہے اس کی وجہ سے موٹا یا باریک پڑھتے ہیں. رو پہ اگر زبر یا پیش ہو تو موٹا، اس کے نیچے زیر ہو تو باریک. کاف مرکز والا باریک پڑھا جاتا ہے. کیوں کو لمبا کیا؟ کیونکہ حروف مدہ ہے، جزم والی لمبا ہوگا. یود احدہم، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. اس کو اس لیے لمبا نہیں کرنا، نہ یہ الٹا پیش ہے، نہ یہاں پہ حروف مدہ ہے، نہ کوئی کچھ بھی یہاں پہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. بہت سے لوگ نا اس کو لمبا کر جاتے ہیں. یود احدہم لو یعمر. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کسی رت کو لمبا نہیں کیا. لو یعمر، میم پہ شد ہے تو غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، رو کو موٹا پڑیں گے، رو پہ پیش ہے. الف سنہ، جن جو ہے وقت جائز کا سائن ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو سنت یوں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایرو جو ہے نا اس بات کی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نے اگر یہاں وقف نہیں کرنا تو آپ یہاں پہ ادغام کریں گے، مطلب ادغام ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام کریں گے. وما ہوا بمزحزحہ، اب زا سخت والا حروف ہے، حلوے والا ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور دو تشمیہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے.
हलवे वाला हा जो है इसको ऐसे अदा करते हैं जैसे हवा बाहर की तरफ आती है, और दो तशमी हा जो है भारी आवाज से अदा होता है, ठीक है। हाँ खड़ी जेर ही, अब खड़ी जेर है तो एक तक लंबा होगा। मीन अल अज़ाबी, लाल चॉकलेट है, ला को लंबा किया, अलिफ से पहले जबर है, हर्फ से मद्दा, एक अलिफ तक लंबा होगा। अय्युअम्मरु, अब मैंने अन नहीं पढ़ा, मैंने ऐन पढ़ा, ठीक है। जब भी जिज़म और शद एक साथ आते हैं, हम जिज़म नहीं पढ़ते हैं, मुशद्दद जरूर पढ़ते हैं। यहाँ हम करेंगे दुआम बिल गुन्ना, दुआम कहते हैं मिलाने को, बिल गुन्ना गुन्ना के साथ, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज के जाने को। अय्युअम्मर, यहाँ तो है तो लाजमी यहाँ पे वक्त पढ़ना है। मैंने पढ़ा है युअम्मर, ठीक है। मीम पे गुन्ना किया है और रॉ को मोटा पड़ा है, रॉ पे जबर है। वल्लाहु, अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, अल्लाह के लाम से पहले जबर है, अल्लाह के लाम पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। बसीरुम, अब जब भी ये छोटा सा मीम आता है इससे मिला के पढ़ते हैं, ये है इकलाब। इकलाब का मतलब है बदलना, तो हमने यहाँ पे रॉ दो पेश रुन होता है ना, नून का साउंड देता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रॉ मीम दो पेश रुम, मीम का साउंड दिया, ठीक है, एम का जो होता है। बिमा यामलून, आइन जब साकिन होता है झटका नहीं देते, नॉर्मली पढ़ते हैं। बू को लंबा करेंगे, जिसम वाली वाव पहले पेश ही कली तक लंबा होगा। उल माँ काना, कॉफ इनको वाला मोटा पड़ा जाता है, माँ पे मैंने इख्फा किया, आवाज पे आगे हरूफ नहीं है। हरूफ हल्की चाहिए है, हमजा हा हलक के नीचे हिस्से से, आइन हा हलक के दरमियाने हिस्से से, आइन हा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं, इसलिए हरूफ हल्की कहा जाता है। अब आगे हरूफ हल्की है तो मैंने यहाँ इख्फा किया, मतलब आवाज को छुपाया। काना काफ मतलब वाला बारीक पढ़ा जाता है। अदो बल्ली जिबरीला, यहाँ पे जब मैंने वाव को लाम से मिलाया तो मैंने यहाँ किया इदगाम बिला गुन्ना, मतलब मिलाया गुन्ना के बगैर। यहाँ पे मैंने किया था इदगाम बिल गुन्ना, मतलब मिलाया था गुन्ना के साथ। जब भी यार मालूम में से लाम और रॉ होते हैं तो हम मिलाते हैं गुन्ना के बगैर, और जब भी यार मालूम में से लाम और रॉ के अलावा आते हैं, अब ये अलावा था या था, तो मैंने यहाँ किया इदगाम बिल गुन्ना, मतलब मिलाया गुन्ना के साथ। लिजिब्रीला, बा साकिन है, जज़म की सूरत में यहाँ पलकरा करेंगे, मतलब मिला के पढ़ेंगे, या आवाज का पलट कर आना। रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के जेर है, इसको लंबा करेंगे, जिसम वाली यास पहले जेर है, कलिफ तक लंबा होगा। फइन्नहु, नून पे शद है, गुन्ना होगा, नाक में आवाज जाएगी, हाउल का पेश एक तक लंबा होगा। नज़्ज़ल, अब देखिए जा सख्ती वाला हरूफ है, नज़्ज़लहु, हाउल का पेश एक अलिफ तक लंबा होगा। अला, लाम पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। क़ल्बी का क़ाफ वाला मोटा पढ़ा जाता है, और मद्द वाला काफ बारीक पढ़ा जाता है। बिइज़्निल्लाह, इज़्ज़ाल सॉफ्ट लेटर है। अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह के लफ्ज़ पहले ज़ेर है, अल्लाह के नाम पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। मुसद्दिक़न लिमा, सौद और कॉफ दोनों हरूफ मुस्तालिया हैं जिन्हें हैवी लेटर्स कहा जाता है। और कल पे मैंने इदगाम बिला गुन्ना किया, मतलब मिलाया गुन्ना के बगैर। लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा, बई और दई ये दोनों हरूफ लीन है, ठीक है। हरूफ मद्दा और लीन, ये फर्क है कि हरूफ मद्दा को एक अलिफ तक लंबा किया जाता है, जैसे कि ये हरूफ मद्दा था नीला, एक अलिफ तक लंबा किया, लेकिन लीन जो है हरूफ मद्दा और जबर के दरमियान में होता है। जैसे कि जबर को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते, बा जबर बा, लेकिन हरूफ मद्दा को एक अलिफ तक लंबा किया, लीन इनके सेंटर में आएगा, मतलब आधा अलिफ। आपने बहुत कुछ खींच नहीं देना और बहुत भी आपने जबर जैसा नहीं पढ़ देना, ये इसके दरमियान में आएगा, मतलब आधा अलिफ। बैना यदैहि वहुदन, अब दऊ पे मैंने किया इदगाम बिलगुन्ना, इदगाम कहते हैं मिलाने को, बिलगुन्ना गुन्ना के साथ, गुन्ना कहते हैं अपनी आवाज के जाने को। व बुशरा, रॉ पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। लिल मुमिनीन, हमजा साकिन है, झटका देंगे, मीम को लंबा करेंगे, जिसम बलियास पहले जेर एक अलिफ तक लंबा होगा। माँ काना, माँ पे हम इख्फा करेंगे, आवाज छुपाएंगे, आगे हल्के हल्की नहीं है। काना काफ मतलब वाला बारीक पढ़ा जाता है। अदु बल्लिल्लाहि, यहाँ देखिए हम करेंगे इदगाम बिला गुन्ना, क्योंकि वाव को लाम से मिलाना है। आपने पीछे नहीं देखना, आपने आगे देखना है। बहुत से लोग ना पीछे देख रहे होते हैं, पीछे वाव है या इस तरह से, पीछे नहीं देखना, आपने आगे देखना है, ठीक है। यहाँ हम करेंगे इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम कहते हैं मिलाने को, बिला गुन्ना गुन्ना के बगैर। अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह के लफ्ज़ पर शेर है, अल्लाह के नाम पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। व मलाइकतिही, लाम पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। बड़ी मत को 5 से 6 अलिफ तक खींच के पढ़ा जाता है। हाँ खड़ी से ही एक अलिफ तक लंबा होगा।
व रुसुली, व रसूली लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज है व रुसुली, ठीक है, व रुसुली, इसे रसूली आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। व रुसुली ही हा खड़ी जेरी एक तक लंबा होगा। व जिब्रीला, बा साकिन है तो कलकला होगा, मतलब हिला के पढ़ेंगे या आवाज का पलट कर आना। री को लंबा किया, हरूफ मद्दा एक तक लंबा होगा। व मीकाला, काफ मरकज वाला बारीक पढ़ा जाएगा और मी को लंबा करेंगे, ये हरूफ मद्दा है। इन पे शद है तो ना होगा, नाक में आवाज जाएगी। अल्लाह कलाम को मोटा पढ़ेंगे, अल्लाह कलाम पर जबर है, अल्लाह कलाम पे खड़ी जबर है, एक तक लंबा होगा। अदुव्वुल लिल काफिरीन, यहाँ पे हम करेंगे इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम से मिलाने को बिल गुन्ना, बिला गुन्ना गुन्ना के बगैर। यहाँ पे हम इदगाम बिला गुन्ना कर रहे हैं क्योंकि यरमलून से लाम आ गया, इसलिए बिला गुन्ना हो रहा है। काफ पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ पे नीचे जेर है, री को लंबा करेंगे, जिसम बलियास पहले जेर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। वालाकद कद वाला मोटा पढ़ा जाता है, दाल साकिन है तो कलकला होगा, मतलब हिला के पढ़ेंगे या आवाज को पलट कर आना। अंजलना, आ पे हमने ख किया, आवाज छुपाई, आगे हरूफ फेल की नहीं है, जा सख्ती वाला हरूफ है। ना को लंबा किया, अलिफ से पहले जबर है, हरूफ मद्दा एक अलिफ तक लंबा होगा और इस पे छोटी मद को तीन अलिफ तक खींच के पढ़ा जाता है। इलेका, काफ मतलब थोड़ा बारीक पढ़ेंगे। आयातिम, ताकि तस्वीर को मीम से मिलाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे इकलाब। जब भी छोटा सा मीम आता है हम इससे मिला के पढ़ते हैं। इकलाब का मतलब है बदलना, तो ता दो जेर तिन होता है। अब हमें नून का साउंड नहीं देना बल्कि मीम का देना है। ता मीम दो जेर तिन हमें यहाँ पढ़ना है क्योंकि छोटा सा मीम आ गया है, हम इकलाब करेंगे। बैजीनात, अगर यहाँ वक्फ करेंगे तो बैजीनात, क्योंकि वक्फ जिन जो है वक्फ जायज का साइन है, चाहे तो आप यहाँ रुकते हैं, चाहे तो आप यहाँ रुके बगैर पढ़ ले। और अगर आप यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहे तो बैजीनात यूं या इदगाम होगा, मतलब मिलाएंगे। इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम कहते हैं मिलाने को, बिल गुन्ना गुन्ना के साथ, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज लेके जाने को। वायत पुरु भी हा, पुरु नहीं पढ़ना, यहाँ को रॉ पे रॉ को नहीं खींचना, खींचे बगैर पढ़ना है, इसको लंबा किए बगैर पढ़ना है। यत पुरु भी हा इल्लल, हा को लंबा किया, अलिफ से पहले जबर है, हरूफ मद्दा है, एक अलिफ तक लंबा होगा और छोटी मत को तीन अलिफ तक खींच के पढ़ा जाता है। टोटल चार अलिफ तक लंबा करेंगे। ये इलल नहीं है, ये इल्लल है, ठीक है, क्योंकि लाम पे शद है इसलिए इल्लल है, अगर लाम पे शद ना होती तो इलल होता। इल्लल फासिकून, फा पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा, सीधी सीधी की आवाज आएगी। कुल को लंबा करेंगे, संभाली बात पहले पेश एक अलिफ तक लंबा होगा। आवा कुल्लमा आहदू, आइन पे खड़ी जबर है, एक अलिफ तक लंबा होगा। दू को लंबा करेंगे, जिसमें वाली बात पहले पेश एक अलिफ तक लंबा होगा। आहदन नबज़हू, दाल की दो जबर को नून से मिलाएंगे, नून पे शद है, गुन्ना होगा, नाक में आवाज जाएगी। नबज़हू, हा उल्टा पेश हो, एक अलिफ तक लंबा होगा। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी कि जब आहदन के आगे अगर ये नून मुशद्दद ना होता तो फिर हमें यहाँ देखना पड़ता कि आगे हुरूफ की है कि नहीं। अब यहाँ पे चूंकि आगे नून मुशद्दद आ गया तो इसलिए हमें देखना ही नहीं पड़ रहा कि आगे हरूफ की है कि नहीं, क्योंकि मुशद्दद हरूफ पे अपनी एक हरकत होती है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे तो हमेशा गुन्ना ही होता है क्योंकि उसकी अपनी एक हरकत होती है। इसके आगे भी आपको देखना नहीं पड़ता नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के आगे हरूफ की है कि नहीं। नाबाज़ाहू, जाल सॉफ्ट लेटर है, जाल को अदा करने के लिए ज़बान के नोक को ऊपर वाली तरफ से किनारे से लगाइए। हा उल्टा पेश हुए, एक लंबा होगा। फरीकुम, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जेर है, री को लंबा करेंगे, जैसे बलिया से पहले जेर है के लिए लंबा होगा। ऑफ धनुष वाला मोटा पढ़ा जाता है। कुम यहाँ हम करेंगे दुआम बिल गुन्ना, इदगाम कहते हैं मिलाने को, बिल गुन्ना गुन्ना के साथ, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज लेके जाने को। मिन हुन, मिन पे इजहार होगा, आगे रुके है हा, तो पे लाजमी वक्त करते हैं। मिन हुम का वक्त मिन हुम ही है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप सांस छोड़ेंगे, मिन हुम पढ़ के सांस लेके फिर आप बल अक्सारुहुम पढ़ेंगे। बल अक्सारुहुम, सा सॉफ्ट लेटर है, काफ मकसद वाला बारीक पढ़ा जाता है। रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ पे पेश है, दो किस्में हालत के लिए इससे अदा होता है। ला युमिनून, ला को लंबा किया, अलिफ से पहले जबर है, हरूफ मद्दा है, लंबा होगा। हमजा साकिन है तो झटका देंगे, यहाँ पे अपने वाव नहीं पढ़नी बल्कि युमिनून नहीं पढ़ना, युमिनून हमजा पढ़नी है। हमजा जब भी साकिन होती है तो झटका दिया जाता है। नू को लंबा करेंगे, जिसम वाली वाव पहले पेश है, पहले तक लंबा होगा। एंड पे तो भी लग जाता है जहाँ खत्म होती है, इस लफ्ज़ का मिस्टेक नहीं करना बल्कि साकिन हो जाएगा, इसका साउंड आएगा युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली में सबक पढ़ सकें और इसको शेयर करना ना भूलें ताकि जारिया बने। अगर आप